Very good evening, everybody. Bit early, but I'm starting off my weekly review for the indices as well as overall market, what way it is going, and where I see some possibilities, where I see some risks. A bit early today because this coming Saturday and Sunday, I'll be busy taking my weekly formal classes around the programs for breakout as well as the bottom fishing strategies, which were my August programs. Now, for the coming month of September, I'll be going through the sessions which will be around the trend following turtle strategy as well as for the weekend investing strategy program. Now, weekend investing strategy program involves the three strategies, the breakout momentum, as well as the trend following, as well as the value investing approach. And all of them are done on the weekly time frame. Just in case if you are interested, you can check with me on the Twitter, or you can go through my training website also, right? So let's get going. And first of all, a big thanks to all of you. A lot of people have put in the comments in the last session that they would like to see me weekly basis. And here I am sharing one more session. Hope this also will help you to gain some knowledge, as well as do share back in case you have any questions or you find that my strategies are going here and there, because even I am a learner. So we can all improve together, right? So let's start off with the strategies and the plan for this week. Okay. So we are going to begin with our standard dashboard for the week, how the week looked, and we'll start with the indices. So if you really observe, the strongest indices through this week has been small cap, and then the mid cap and Nifty. A typical behavior in a momentum market where you will find that the small caps run faster than the mid cap and the Nifty. Either ways, when you are rising as well as when you are falling. It is when we are sideways that we will typically find that these three sectors somewhere they start getting mixed up. So Nifty overall in a positive territory for me. I don't see much issue. Let me clean up the chart with the moving averages. Yep. Yep. So here we are on the Nifty. The major thing over here is that the resistance of 24,600, which really bothered us a bit, is done away with. Okay. So you can observe 24,600 was a resistance last time when we peaked out. Then again we crossed, but again we missed it. And again we are standing above 24,600. So remember, till the time we are above 24,600, I would say we are in a pure play bullish kind of a trending market. Okay. The moment will come below 24,600 till around 24,200, this patch, which we really groomed up. So that time we will become sideways. Okay. So that you will be able to track it during the week in case that happens. So if we fall below 24,600 till around 24,000, this is the range. In this range, we are going to become sideways, and below 24,000, definitely there is a fall that is going to come up. And till the time we are above 24,600, we are in a trending kind of a market. So one thing you will observe over here is that Nifty, though, is not able to really hold on to its initial heights every day, it is still able to maintain a bit of up move while the close comes. So if I really take it down towards the last 5 days chart, you will be able to realize what is happening is that Nifty is moving inch by inch. Okay. So first day it went up but closed below. Second day, again, it went, ended up positive. It opened, closed positive. And last 2 days, it has been opening upwards, but closing down, opening upwards, but closing down. But overall, it is still really been able to maintain its, the close inch by inch on the upside. So we are bullish. We continue to stay bullish. And this might be a nervousness, which I believe is coming from two things. Number one, yes, we are reaching the top. So that starts bothering people. They start booking out.
And secondly, what is going to happen in US, all the discussion that is happening around the rate, whether they'll be dropping the rates or not. Today, by the way, that is 23rd that I'm speaking with you at this time. US market must be, or rather is working around with what is going to happen at Jackson Hole and the speech that is going to come up from Mr. Powell, right? Let me have a quick look at how we are doing in US. So US, wow, we are doing great. We are 1.4% up on NASDAQ. So wonderful. If you are wondering where I am looking, let me quickly bring up this site over here. This is a very simple site, nothing great about it. And I am one who love to work with websites which are kind of very, very simple, and they help me to keep things simple. Right? There's not much of noise on this over here. So you can observe this is the liveindex.org. Very simple website, nothing great. You are having NASDAQ 1.4 up, Dow Jones 0.7 up. So bullish. We are bullish. I hope we stay this way. If we close bullish in US, I think our hopes for having a more stronger up move next week. That is, we'll be ending up maybe at an all-time high on Nifty. High possibility uh, if the US side story really pans out the way people are hoping it should be. And higher chances that that will happen because data is showing similar impact, right? That was Nifty for us. So 24,600 is immediate point of botheration. Till we are above, we are all good. And up to 24K, we'll be in a sideways move. That is what would be my plan. Now let's look at other indices. The strongest performing indices this week is CNX small cap, very much knocking on the all-time highs. Just very much knocking at the all-time high. The beautiful thing you will observe is the support, rather it has taken around 50 MA. So line of survival remains 18,571 over here, while we are knocking an all-time high. Maybe we might create an head and shoulder. We are halfway through, or rather 75% through, or we might just break out straight off. I would prefer a bit of a head and shoulder here because that will give us a more comfort, a good base to really depend upon in case there are risks on the way ahead. You know, the sooner the weak hands get down, get out, that is where our journey upwards becomes easier. More we carry the baggage of weak hands, more the risk is there that there will be a panic and there will be sharp drop. Similarly, on the mid cap, which was or rather is the strongest index through the last fall that we observed, didn't touch the 50 MA, so surviving well. And here you can see it made a CNH. So this is a good base to rely upon 16,200. Above 16,200, we are bullish and hopefully we will be knocking off the all-time high through the next week. High possibility because of the positivity that again I am viewing at NASDAQ. So that's where we are on the three indices. Coming to the sectors which did great this week, the Nifty commodities has done greater run up through this week. FMCG did its good job. Now we'll have to really look into the Nifty commodities versus Nifty metal. So within commodities, it is the metal which has done the strongest work. So the biggest work through this week has surprisingly been done by metal. So metals and consumables are running ahead. I'm basically not a big fan of metals because it is a cyclical and doesn't really give me the kind of move that I want, which are more secured and more, trending. So anyway, but metals are performing. But how is the index looking? So we still have a bit of negativity to catch up with. So you can really observe, though metal has run up strongly, there's a good amount of overhead supply that is going to come at these levels. Okay. So metals are good, but definitely not a place to play momentum because they are still not out of the woods. Strong through the week, but still under the risky zone. Bank Nifty similarly is really knocking to give a comeback. And if it comes back, I think that is where we will hit an all-time high.
because two things will happen. One, with the positivity in US, I can see IT index moving upwards through Monday, Tuesday. That can give us an ATH. और सोने पे सुहागा, अगर बैंकिंग भी उसको ज्वाइन कर ले तो और अच्छे से हमको बोल्ड मूव्स आ सकते हैं, बट अभी भी बैंकिंग निगेटिव में है। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल निगेटिव साइड पे है। रियलिटी मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे कहा था, टच मत करिएगा, क्योंकि जब तक आप मोमेंटम निगेटिव है आपका, आपके चांसेस टफ है एक अप मूव आने के, राइट। तो कहाँ पे अभी हमने नजर दौड़ानी चाहिए, तो एफएमसीजी एक अच्छा सेक्टर है, और फार्मा एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे हम नजर दौड़ा सकते हैं। हेल्थ केयर है, तो फार्मा हेल्थ केयर काफी कुछ पैरेलल चलता है, तो दीज आर द प्लेसेस वेयर वी सी दैट द परफॉर्मेंस इज बेटर देन निफ्टी। ये याद रखना है, आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ के मुताबिक अगर हमको देखना है इस हफ्ते में, तो जो सेक्टर्स निफ्टी से बेटर कर रहे हैं वो यहाँ पे है। तो इनके कारण निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो हेल्थ केयर, एफएमसीजी एंड commodities, these are the sectors which are helping निफ्टी। while निफ्टी से वीक जो चल रहे हैं उसमें आपको मेजरली इस बार आईटी दिखेगा। आईटी का रीजन भी आज का फॉल है, जो फॉल आज आया है, दैट हैज बीन द मेजर कॉज। और ये फॉल यूएस को देख के आया था, क्योंकि कल विद द वरीज अराउंड जैक्सन होल में क्या बोलेंगे पॉवल साहब, काफी लोगों ने एक सेफ्टी का स्टांस लिया था, तो वहां पे कल फॉल आया था। लेकिन अभी भी जो पॉजिटिविटी है यूएस मार्केट में, लेट मी रिफ्रेश, तो वी आर लुकिंग गुड। ओके, सो दिस इज हाउ ओवरऑल यहाँ पे स्टांस है मेरा, कि मैं ढूंढूंगा अपॉर्चुनिटीज, तो टिपिकली मैं एफएमसीजी की तरफ ज्यादा ढूंढूंगा अपॉर्चुनिटीज। और देखते हैं आगे स्टॉक बाय स्टॉक, जब मैं आऊंगा तो उधर भी आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, राइट। सो ओवरऑल हर जगह पे निफ्टी में 24,600 आपको वॉच करना है। इसके ऊपर हम बने हुए हैं, तो हम मोमेंटम मार्केट में पोजीशंस लीजिए, ट्रेंडिंग मूव्स आएंगे। 24,600 से 24K तक हम एक साइडवेज मार्केट में जा सकते हैं, जहाँ पे दोनों फेजेस दिखेंगे, सेल ऑन राइज दिखेगा और बाय एट बॉटम भी दिखेगा, दोनों दिखेगा क्योंकि साइडवेज है, राइट। 24K के नीचे जाने के चांसेस मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि कम है। फिर भी मैं आपको एक थोड़ी सी चीज आगाह कर देता हूँ, एक लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस हफ्ते मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट को देखा, तो देर आर सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी शुड लुक एट। तो ये लॉन्ग टर्म चार्ट होगा निफ्टी का, इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में है, ये तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो एक 5 साल का मैं आपको मूव दिखाता हूँ, विच इंक्लूड्स निफ्टी का बॉटम जब कोविड आया था। तो इस कोविड के बॉटम को अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं, मार्क कर देते हैं, अप्रैल 20 की बात है, और फिर यहाँ पे आने के बाद हमारा ओवरऑल जर्नी रुक गया था, जो कि अक्टूबर है, ठीक है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे ना, ये कुल मिलाकर के जो पीरियड आता है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक, तो दिस इज समवेयर अराउंड 18 मंथ्स। ये 1.5 साल का पीरियड है, ठीक है। तो 1.5 साल का हम लोगों ने एक सॉलिड बुलिश ट्रेंड देखा था। जस्ट ऑब्जर्व करिए और एक रियलाइजेशन रखिए दिमाग में, क्योंकि जो हमको रखना पड़ेगा, बोलते हैं ना, मन की तैयारी करके रखनी चाहिए। कुछ नहीं होता है मार्केट में, दोनों तरफ से खेला जाता है। अच्छा चल रहा है तो अच्छा चल रहा है, लेकिन बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना है। आएगा नहीं आएगा, आई विल नेवर प्रेडिक्ट, फ्रैंकली बताता हूँ, मार्केट प्रेडिक्ट मत करिएगा, लाइफ इजी रहेगी। फिर ये पीरियड देखिएगा जब हमने एक साइडवेज सा मार्केट देखा था। फिर देखेंगे आप, अक्टूबर से ये चला था अप्रैल तक। अब आप फिर से ऑब्जर्व करेंगे, ये फिर से पीरियड जो है ये हमारा अराउंड 18 मंथ्स का था। सो वी हैव मूव्ड इन बैचेस ऑफ 18 मंथ्स। तो अगर मैं इस अप्रैल की अप ट्रेंड की बात करूं, तो मुझे लग रहा है अराउंड अक्टूबर हमको थोड़ा रेडी रहना पड़ सकता है फॉर सम डाउनवर्ड्स मूव if it comes. Okay, so this is something that I would like you to be stay aware about it.
एक बिग पिक्चर मार्केट का दिमाग में हमेशा रखना बेटर रहता है, क्योंकि हम थोड़े अच्छे से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अगर ये हो तो फिर हमें क्या करना है, राइट। तो ये 18-18 महीने के अब तक तो हमारे स्लॉट्स चल रहे हैं। तो अगला 18 महीना आएगा, जस्ट 2 महीने बाकी है, सितंबर अक्टूबर। और वहां पे एक बड़ा इवेंट जो इंडिया में मुझे दिखता है वो 4 मेजर स्टेट्स का इलेक्शंस है, राइट। ये पॉलिटिकल जो चीज है, ये एक मुझे यहाँ पे एक दिखता है जो हमारे लिए कुछ चैलेंजेस खड़ा कर सकता है। एक नर्वस पीरियड शायद आगे आ सकता है। बाकी इंडियन कंटेक्स्ट में मुझे ना तो कुछ बजट आगे है, ऐसा कुछ चीज नहीं दिख रहा है, ना कुछ अदर मेजर इवेंट है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वाइल वी आर एंजॉइंग गुड टाइम्स, बेटर स्टे अलर्टेड, कि ये हमें हमेशा हम्बली तैयार रहना होता है मार्केट में, कि अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं चलता है, बुरा वक्त भी हमेशा नहीं चलता है। सिर्फ तैयारी रखिए कि हम नुकसान में कम जाए। ये तो क्या होता है ना, जितना हमने यहाँ पे कमाया है वो हम यहाँ पे गवा देते हैं। दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई वांट। मैं मेरे स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि कमाना आसान है बनिस्बत गंवाने से बचने के। तो कैपिटल को बचाना इज द मेजर चैलेंज, जो इस पीरियड में आपको काफी बार है ना साइडवेज में होप्स और डिस्पेयर दिखा देते हैं, और इस फ्रस्ट्रेशन में हम पैसा लूज करते हैं। और 1.5 साल का पीरियड पेशेंस भी बहुत टेस्ट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम ट्रेंडिंग मार्केट में हैं, पैसा बनाइए, खुश रहिए। लेकिन आगे जब भी मार्केट स्लिप हो, फ्रैंकली बताता हूँ, साइडवेज या मतलब साइड लाइन में खड़ा रहने के लिए तैयार हो जाइएगा। सेव द कैपिटल वॉट एवर यू हैव मेड ओवर हियर, ओके। पीरियड कहाँ लगता है, तो एक सिंपल सा मुझे लग रहा है कि सितंबर तो मैं नहीं बोलूंगा बहुत करीब है, लग नहीं रहा मुझे, बट अक्टूबर के करीब थोड़ा सा एक रेडीनेस रखिएगा, या अलोंग द इवेंट ऑफ दोज इलेक्शंस। सो कीप अ वॉच ऑन दैट, ओके। Right over here. Now I'll just let's talk about what is to be done on any of the ETFs, right? तो पिछली बार जब हम आए थे तो आपको याद होगा हमने देखा था ऑटो ETF, इफ यू guys remember. Last time when we met on the weekly review, we had a look at the ऑटो ETF। तो यहाँ पे देखेंगे, ये ऑटो बीज है। ये आपको ऑटो बीज अभी क्लियरली स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक VCP भी बनता हुआ दिखेगा। सो दिस जोन वी हैव मेड अ वेरी शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ अ VCP, राइट। सो ऑटो इज लुकिंग गुड, फ्रैंकली ऑटो इज लुकिंग गुड। और इसके दो रीजन भी है। आज आप चार्ट पे देखेंगे तो टू व्हीलर कंपनीज ने अच्छे सेटअप दिए हुए हैं, जो कि मैंने मेरे ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किए थे। आई एम सॉरी इफ you're getting bothered with my voice, but bit of irritation is there. तो आज हमने देखा था बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में भी आप देखेंगे पूरा का पूरा यहाँ पे एक टाइट स्लॉट सा बन गया था, राइट। VCP है फाइनल फेजेस में, और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ गया है। तो बजाज ऑटो, और दूसरा है TVS मोटर्स। तो ये जो ओला और EV का जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट अभी इस कॉम्पिटिटर्स पे भी दिख रहा है। ये अच्छे मूव्स आए हैं इन दोनों में। जबकि लार्ज कैप में मैं देख रहा था M&M, जो मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, उसका सेटअप जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो फोर व्हीलर्स की तरफ अगर मैं जाता हूं तो मुझे उतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, जबकि टू व्हीलर्स में काफी स्ट्रेंथ आ चुकी है। तो हमें जो वॉच करना है आगे, वो वॉच करना होगा कि फोर व्हीलर्स अब कैसा रिएक्ट करेंगे, ओके। फोर व्हीलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो अभी क्रिटिकल होगी ऑटो को, इंडाइसेस को एज एन इंडाइस आगे लेके जाने के लिए। इतना मुझे दिख रहा है बॉटमिंग आउट के साइंस हैं। बट ये ताकत कैसे बढ़ेगी अगले हफ्ते में वो देखना है, क्योंकि फिर वो ही इसी को ATH की तरफ लेके जाएगी, राइट। ऑटो इंडेक्स की तरफ नजर रखिएगा। और एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे इस हफ्ते के लिए मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो है MON 100।
तो मॉन 100 जो है ये है ETF विच इज रेप्लिकेटिंग दी इंडाइसेस ऑफ नास्डैक 100। तो जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है उसकी 100 कंपनीज का जो इंडेक्स है उसको इंडिया में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज यूजिंग द N100 मॉन 100 जो है ETF। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यूएस मार्केट ने अपमूव दिया है और रेट कम होने के चांसेस हैं आने वाले रिव्यू में। तो यहाँ पे आपको एक दिख सकता है अच्छा सा मूव आने के चांसेस मॉन 100 में भी आपको दिख सकते हैं। तो इसको एक जरा अच्छे से वॉच करिएगा। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड इज गोइंग स्ट्रांग, तो दैट इज happening. We are looking at the gold bees. So gold is going strong. So there is nothing to really take anything out and all that. Mafang is also showing similar strength as MON 100. तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इट इज ऑल्सो स्टेबलाइजिंग। तो मॉन 100 और मैफैंग इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आने वाले हफ्तों में। दिस कैन शो यू अप गुड मूव्स, राइट। कमिंग टू द स्टॉक्स, तो स्टॉक्स के मामले में आई विल जस्ट गिव यू अ बिट ऑफ एन अपडेट दैट इन द कमिंग मंथ ऑफ सितंबर मेरे दो प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर मेरी कोर स्ट्रेटेजीज डेवलप की हुई है। तो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है दैट इज द ट्रेंड फॉलोइंग प्रोग्राम। सो नाउ दिस इज अ प्रोग्राम विच इज फॉर पीपल who are actually able to watch the market on daily basis। so daily अगर आप 30 मिनट्स तक मार्केट में चार्ट्स देख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम। ट्रेंड फॉलोइंग प्रोग्राम की स्ट्रेटेजीज क्या होती है कि ब्रेकआउट से पहले आप एंट्री करते हैं समवेयर हियर। द होल आइडिया हियर इज दैट यू आर एंटरिंग बिफोर द वोलेटिलिटी दैट कम्स विथ अ ब्रेकआउट। सो दिस प्रोग्राम आई फाइंड गुड फॉर पीपल हु आर very sensitive to seeing their स्टॉक इन प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। जिनको थोड़ा भी लाल कलर अगर दिख जाए पोर्टफोलियो में और पैनिक होते हैं उनके लिए प्रोग्राम अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी और कई बार स्टॉक करेक्ट होते हैं। तो अगर आप ब्रेकआउट पे कभी स्टॉक को लेते हैं तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या हो जाता है कि इस वोलेटिलिटी में कभी कभी -2 -3% भी स्टॉक आ जाता है विच शेक्स पीपल्स कॉन्फिडेंस। इंस्टेड इफ यू एंटर बिफोर ब्रेकआउट मे बी आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे साइडवेज में, बट बेनिफिट ये है कि आगे ब्रेकआउट आने के बाद जो कुछ भी वोलेटाइल मूव्स होगी वो आपके स्टॉक को रेड में नहीं ला पाएगी। तो आप कंफर्टेबली इसको झेल करके आगे की रैली को सरवाइव कर सकते हैं। दैट इज द होल आइडिया दैट इज अबाउट द ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, राइट। और दूसरा प्रोग्राम जो होने वाला है अगले महीने वो होगा हमारा वीकेंड इन्वेस्टिंग का जो प्रोग्राम है दैट इज समथिंग दैट विल बी हैविंग इन द कमिंग नेक्स्ट मंथ। सो वीकेंड इन्वेस्टिंग जो प्रोग्राम है दैट इज अ प्रोग्राम विच इज looking at the strategies which are for the people who are busy during the week, right। तो अगर आप पूरे हफ्ते में बिजी रहते हैं, आपको मार्केट को देखने के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ सैटरडे संडे को ही आप मार्केट देख सकते हैं, देन दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू। इस प्रोग्राम में वी वर्क ऑन द वीकली चार्ट्स, ओके। तो इस प्रोग्राम में हम वीकली चार्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज गुड फॉर पीपल हु आर बिजी ड्यूरिंग द वीक बट दे कैन लुक एट द मार्केट ड्यूरिंग वीकेंड्स and they can plan a weekly based progression. So this kind of turns into a good mid-term and long-term kind of a investing, right? In this we will have all the three strategies: trend following turtles, breakout momentum tigers, as well as value investing. All the three are there. So I'll be hosting these programs if I go to the month of September. So this will be hosted around the second to third week. The whole idea is we'll be having this program in the dates would be around 7th, 8th, 9th, and then 14, 15, 16, and maybe 21, 22. So something here starting from the second weekend I'll be hosting this program, and this program will be also available on discount in coming 1 week, right? So early bird discount है। I'll be always happy to connect with you people, and what happens is that यहाँ पे discussion हो जाता है और उसके पीछे की जो study है वो मैं share नहीं कर पाता हूँ due to the time limitation। तो study आपकी understanding की जो grip है that is what gets improved when you attend these programs।
So now coming to the stocks, the gold scan actually popped up a very interesting name today, ज्योति रेजिन्स। ठीक है, तो ज्योति रेजिन्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सो लेट्स लुक एट ज्योति रेजिन्स। उससे पहले एक छोटा सा आपको एक आइडिया देता हूँ। अगर आप ब्रेकआउट पकड़ना चाहते हैं ना ऑन द स्क्रीनर, तो एक सिंपल सा कंपैरिजन करिएगा। कोई भी स्कैनर रहेगा ना, उसमें ये दो चीजें कंपेयर करिएगा, 1 वीक रिटर्न वर्सेस 3 मंथ्स रिटर्न। ओके, और जहां कहीं भी 1 वीक का रिटर्न इज मोर देन 50% ऑफ 3 मंथ्स रिटर्न ना, हाई चांसेस हैं कि वो ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो ये सिनारियो को जरा स्टडी करिएगा। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन पिछले हफ्ते से मैं आंखों को थोड़ा ट्रेन कर रहा हूँ हाउ टू गेट अ ब्रेकआउट स्टॉक्स फ्रॉम द स्क्रीनर स्कैनर इटसेल्फ, क्योंकि स्क्रीनर में उतना हम अच्छे से स्कैन नहीं कर पाते ऑन टेक्निकल्स। बट एनीवे, लुक एट दिस कॉम्बो, दैट विल गिव यू एन आइडिया। प्लस वेर एवर योर RSI इज आई थिंक बिलो 70, right? So IRSI below 74 till around 60 is something where you can find breakout, but काफी बार इसमें रिवर्सल्स में स्टॉक्स पकड़े जाते हैं, तो इन सिनारियोस को अवॉइड करना है। तो ये देखिएगा कि मेरा एक हफ्ते का रिटर्न है, ये 3 महीने के हाफ से अगर ज्यादा है, काफी चांसेस हैं कि आई एम सिटिंग ऑन अ ब्रेकआउट। जस्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ लेट्स गो टू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ ज्योति रेजिन्स। तो ज्योति रेजिन्स अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं, तो काफी स्ट्रांगली चलने वाला स्टॉक है। इट इज वन टाइम अ वेरी गुड फेवरेट ऑफ माइन ऑल्सो। तो पिछले 2 साल में जो हमने रैलीज एंजॉय की थी पोस्ट कोविड, उसमें एक बड़ा प्लेयर था ज्योति रेजिन्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लॉन्ग टर्म काफी अच्छे से चलने वाला स्टॉक है। आई एम गोइंग टू वीकली एंड लेट्स लुक एट इट, राइट। तो लॉन्ग टर्म चार्ट और ले लेते हैं एक 5 साल का। तो आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक ने बहुत सॉलिड रैली किया था। ये पूरा का पूरा कोविड के टाइम से 100 रुपए का जो है रैली 1700 तक आ गया था। और वहां से हमेशा इतना ऊपर जाने के बाद देर इज अ सेंस ऑफ हाई वैल्यूएशंस एंड अदर थिंग्स, एंड फाइनली इट करेक्टेड। और नाउ व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, इफ एनीबडी इज आउट देयर वाचिंग दिस वीडियो, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मुझे बता देना कि यहाँ पे हमने कौन सा पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, तो टू मेक इट इजियर लेट मी गेट टू 3 इयर्स। तो नियर टर्म में अभी हमने यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाया हुआ है, ये जरा प्लीज आप इस वीडियो की कमेंट में पक्का मेंशन कर देना, सो दैट आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि आपको मेरी बातें समझ में आती है। आप पूरा वीडियो देखते हैं समझ करके कि सिर्फ टिप्स ढूंढ रहे हो मेरे वीडियोस में। सो इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, राइट। और ये पैटर्न जो है ये काफी हद तक आपको बता देता है कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। क्लू है, ये पैटर्न डिस्कस किया जाता है बेसिकली विद रेफरेंस टू मार्क मिनरवेनी, तो उनका ये फेवरेट पैटर्न है। तो यहाँ पे वो पैटर्न आता हुआ दिखा है। तो टेक्निकली ये यहाँ पे अच्छा सा हो गया है, हमारे गोल्डन स्कैन में भी ये आ गया है, तो इसके फंडामेंटल्स वैसे अच्छे ही होंगे। तो ग्रेट नहीं हो सकते हैं बट अच्छे जरूर है। कैसे अच्छे हैं, तो लेट्स लुक एट अवर सिंपल थिंग्स। प्रॉफिट ग्रोथ इज इन प्लेस, डेट जीरो है, कंपनी खुद के बलबूते पे खड़ी है। ठीक है, ROC स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेरी सॉलिड। PY देखिएगा 25.7 है। ओके, करंट PY इज 25.7। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन देखिएगा 32 है। मेरा जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर उसमें ड्रॉप है, लेकिन ईयर ऑन ईयर मेरा अर्निंग्स काफी सॉलिड है। क्वार्टर टू क्वार्टर मेरा अर्निंग्स में ड्रॉप है। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे को क्वार्टरली रिजल्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बट अदरवाइज एनुअल लेवल पे कंपनी बहुत ही सॉलिड चल रही है। ROIs अच्छे हैं, डेट जीरो है, ऑपरेटिंग मार्जिन सब कुछ अच्छा चल रहा है। अट्रैक्टिव चीज पी है। अब पी और अर्निंग्स को जरा ठीक से देखते हैं हम लोग चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे तो प्राइस चार्ट रहता है हमेशा, पी चार्ट पे जाइएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे इस स्टॉक का में रिस्क डेवलप हुआ है, एंड देन हाउ पीपल रियली ब्रॉट इट डाउन। तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे स्टॉक जबरदस्त दौड़ा था, टिल व्हाट, टिल दी
मिड ऑफ 2022, यानी अक्टूबर तक, जहां पे 22 अक्टूबर तक ये काफी सीधा ऊपर तक दौड़ा था। और उसके कारण इसके वैल्यूएशन आप देखेंगे ना, अक्टूबर 22 तक, यानी अगेन ये यहाँ पे आ गए थे। यही लाइफ साइकिल आपको हमेशा समझनी होती है कि स्टॉक अच्छे होते हैं। अर्निंग्स आप देखेंगे ना, अच्छी चल रही थी, अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा आपको, तो आपको लगेगा अरे फंडामेंटली तो स्टॉक अच्छा चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, आगे भी अर्निंग बढ़ती रही, लेकिन प्राइस आपने देख लिया चार्ट पे घटती रही। कैसे मार्केट में सेफ्टी बिल्ड हो जाती है अच्छे बिजनेसेस में। तो प्राइस चढ़ती गई, परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा था, प्राइस गिरती रही फिर भी परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा था। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है कि आप देखेंगे इस रेशियो को, यू शुड वॉच दिस रेशियो, पी बाई ई। ओके, ऑन वन हैंड आपका डिनोमिनेटर जो है अर्निंग पर शेयर, वो बढ़ता ही जा रहा था और प्राइस घटती ही जा रही थी। न्यूमरेटर बढ़ रहा था, न्यूमरेटर घट रहा था, डिनोमिनेटर बढ़ रहा था। तो पीबा ई देखिए कितनी जोरों से गिरी। अब क्या हो गया, स्टॉक के अंदर आ गया है वैल्यूएशन कंफर्ट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, price has corrected but earnings have remained stable or they have gone up only. So what has happened, huge valuation comfort has come and now the valuation is below the 5 year average. Okay, और जैसे ही किसी भी स्टॉक अच्छे बिजनेसेस में वैल्यूएशंस कंफर्ट आ जाते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिखता है कि वहां पे बिग इन्वेस्टर्स आकर के अपना एक्यूमुलेशन शुरू करते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ पे किया है। बिग इन्वेस्टर्स इन पीक्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, वो इन ट्रव्स के ऊपर काम करेंगे, जो यहाँ पे बीच बीच में ट्रव्स बनते हैं ना, उनके ऊपर काम करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे काम करना चालू कर दिया है और आपको यहाँ पे क्लियर कट एक वीसीपी दिख रहा है। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी क्या बन रहा है, इफ यू आर वॉचिंग विथ मी, लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी आपको दिख रहा है कि हम एक वीसीपी की तरफ या कप एंड हैंडल की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, big positive is definitely valuation comfort while the earnings of the business have been stable and growing up. ये कंपनी है किस सेक्टर में, ये बेसिकली फेविकॉल की कॉम्पिटिटर है। और फेविकॉल अगर आप देखेंगे, ये फेविकॉल जो है दिस कम्स विथ पीडीलाइट, एंड पीडीलाइट इज अ कंपनी विच इज अ बिजनेस इनटू कैटेगराइज्ड एज एफएमसीजी। ओके, तो पीडीलाइट बिजनेस के कंपिटिटर है ये, लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी है, कोई बड़ा मार्केट कैप नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। 48.8% पब्लिक के पास होल्डिंग है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एफ का देखिए स्टेक्स बढ़ गया है, डीआईएस का भी स्टेक्स बढ़ गया है। ठीक है, और पब्लिक का जो है, ये आपका देखेंगे कि पब्लिक का जो है वो काफी हद तक स्टेबल ही रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एनुअल बेसिस पे भी। लेट्स लुक एट इट, यू विल ऑब्जर्व दैट एनुअल बेसिस पे एवरी एनम दिस वाज अ डिप। ओके, एवरी एनम दे हैव बीन ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। एक्चुअली 22 में जहां से ये करेक्ट हुआ है, उसके बाद से आप देखेंगे तो रेवेन्यू तो काफी ऊपर चला गया है। रेवेन्यू अराउंड 50% अप जा चुका है आपका। आपका अर्निंग पर शेयर देखिए कहाँ पे था, एक कहाँ पे आ गया है। सो दिस हैज एक्चुअली बिकम 16, फोर जा 48, 0.5 ऐड करेंगे तो 56, यानी 4.5x हो गया है मेरा ईपीएस। 22 में जहां से स्टॉक करेक्ट हुआ था, वहां से 4.5x में आ चुका हूं। प्राइस लेकिन ऊपर से नीचे आ गई है, और ये हो गया है मेरा बिग बिग valuation gap that has now been created in this stock. So एक हाई पॉसिबिलिटी टेक्नोफंडा सेटअप है, एक अलग अलग तरीके का सेटअप है। इसको आप, मैं मोमेंटम नहीं बोलूंगा क्योंकि मोमेंटम टिपिकली मैं ढूंढता हूं ऑल टाइम हाई से करीब करीब 15% के अंदर। तो लेट्स लुक एट इट, ऑल टाइम हाई कहाँ पे है, 1800, 15% करेंगे तो अराउंड 180 एंड 90, 270 माइनस करना है, तो अराउंड 1500 के करीब। यस
इट इज अबाउट टू नॉक इनटू माय ऑल टाइम हाई जोन ऑल्सो। तो पापा स्कैन का जी, अगर आपको थियरी याद है, अगर आपने मेरा सैमको पे वीडियो देखा होगा, दिस इज द जोन फ्रॉम वेयर वी लव टू वर्क, एंड दिस इज वेयर दिस स्टॉक इज नॉकिंग। तो ये एक अच्छा सेटअप है जो आपके साथ डिस्कस करना था। तो ज्योति इज समथिंग दैट यू यू कैन लुक एट। और फिर प्लैटिनम में से मैं आपके लिए एक सेटअप अच्छा ढूंढ रहा हूँ आज। प्लैटिनम में काफी स्टॉक स्ट्रेच्ड हो गए हैं, तो मुझे एक सेफ स्टॉक मोमेंटम और स्ट्रेंथ और सेफ्टी के कस्प पे चाहिए था, तो वीनस पाइप मुझे दिख रहा है। ओके। अभी वीनस पाइप में भी आपको सबसे पहले टेक्निकली दिखाता हूँ कैसे चल रहे हैं हम लोग। वीनस पाइप्स, वीनस पाइप्स, इफ यू रियली ऑब्जर्व इट, ये वीकली चार्ट है। आई गो टू 6 मंथ्स टेक्निकल। वैसे भी वीकली में भी आपको दिख गया होगा कि काफी हद तक ये अभी कंसोलिडेशन के मोड में है। डेली में भी आपको दिखेगा कि एक डारवास बॉक्स टाइप सेटअप है आपकी आंखों के आगे। ओके। एंड इट इज नॉकिंग द हाइज, ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। और बेस्ट क्या है इसके अंदर, कि पूरे 4 महीने का एक रेस्टिव पीरियड हो गया है, कंसोलिडेशन हो गया है। तो जिन लोगों को आगे जाना है, नहीं जाना है, जाना है, नहीं जाना है, वो वीकेंड्स इसमें से निकल गए हैं काफी हद तक। चांसेस है कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। और इसके फंडामेंटल्स में एक टच बेस लेते हैं। तो फंडामेंटल्स में यस, सबसे पहले डेट पूरा कंट्रोल में है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 48.2 है, तो थोड़ा और रादर हाइयर साइड पे है, ठीक है। आरओसी इज डैम गुड, मार्जिन इज डैम गुड, माय प्रॉफिट ग्रोथ एनुअल इज डैम गुड, आरएसआई इज इन द हीटिंग अप जोन। तो यहाँ से हम आगे की तरफ निकल सकते हैं। और ओवरऑल आप देखेंगे तो मेरा क्वार्टरली सेल्स ग्रो हुआ है, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रो हुआ है, क्वार्टरली वाईओआई अर्निंग्स ग्रो हुए हैं, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी अर्निंग्स ग्रो हुए हैं। मार्केट कैप 4,633 और पब्लिक के पास सिर्फ 33% है। सो ओवरऑल फॉरवर्ड पी जो है इसको सेफ बना रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे एक ही चीज है कि वैल्यूएशन थोड़े हाई की तरफ है, लेकिन कंपनी डिजर्व्स इट। व्हाई? बिकॉज हाई मार्जिन, हाई ग्रोथ, एग्जैक्ट सेटअप जो हम ढूंढते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। और क्वार्टर टू क्वार्टर मेरा फेवरेट यहाँ पे सेटअप बन रहा है, जो कि है बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ एबिटा प्रॉफिट, बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ पैट, बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ ईपीएस एज वेल एज नेट प्रॉफिट। तो ये सब कुछ अच्छा है। और स्टॉक एक टाइट जोन में फंसा हुआ है। बहुत एक मैच्योर्ड सेटअप है जिसके ऊपर हम एंट्रीज ले सकते हैं। स्टॉप लॉस भी काफी नजदीक रहेगा, क्योंकि मार्केट, एक बात याद रखिएगा, हर हालत में इज नॉट अ 100% कोई स्ट्रेटेजी चलती है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हमने टेक्निकली भी देख लिया, फंडामेंटली भी देख लिया, सब कुछ ठीक ठाक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वी कैन मेक एन अटेम्प्ट ऑन इट, दैट इज द प्लान। एंड ओवरऑल वाईओवाई में भी आप देख सकते हो, साल दर साल कंटिन्यूअस ग्रोथ है कंपनी में। So very solid growth, growing business, doing great, and high probability we might get a breakout and we get a good move also. Shareholding pattern you can observe. Yes, FIIs have increased, DIIs have increased, public have reduced. So good, we are good. तो एक वीनस पाइप्स जो है, ये एक टेक्नो फंडा आप मोमेंटम प्ले के बारे में देख सकते हैं। और एक प्लैटिनम सेटअप है जो अच्छा है, जो है दौलत एल्गोटेक। ठीक है। तो दौलत एल्गोटेक को भी देख लेते हैं आज। तो आपकी चॉइस क्या रहेगी, वीनस रहेगी, ज्योति रेजेंस रहेगी, कि दौलत रहेगी? ये कमेंट्स में आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि आपसे मेरे को रिस्पॉन्सेस चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ टिप्स लेकर के आगे जा रहे हैं, तो मे बी दैट इज नॉट द राइट थिंग। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी योर इंटरेक्शन, योर थॉट्स। दौलत को देखते हैं, दौलत एल्गोटेक। ये सेटअप भी आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट रिटेस्ट पहले हुआ था, एकदम बेस से बाहर आते आते, और वहां से हम निकल पड़े। स्टॉप लॉस क्लियर कट 145 है, व्हाइल आई एम राइडिंग द एटीएच, ये मेरा ऑल टाइम हाई है। ओके। ऑल टाइम हाई है, ये सेफ है मेरे लिए ऑल टाइम हाई होने के बाद भी, क्योंकि आरएसआई मेरा अभी भी कूल ऑफ जोन में है, कुछ ओवर हीटेड सा नहीं है। तो अच्छा सेटअप है दौलत का टेक्निकली, फंडामेंटली
Does it have the stuff that I'm looking for? Let's quickly look at it. तो फंडामेंटल में ऑपरेटिंग मार्जिन, डेट टू इक्विटी, रिटर्न रेशियोज, वैल्यूएशन सर, वैल्यूएशन, वेयर इज द वैल्यूएशन? जस्ट 13.8. फॉरवर्ड पी बाई ई करो तो जस्ट 10.4. कंपनी इज अ स्मॉल कैप. RSI is cooling off. Your sales has grown YOY. Profits have grown YOY. Earnings have jumped like 4x YOY and 5% क्वार्टर टू क्वार्टर. पब्लिक के पास सिर्फ 25% है ये स्टॉक. सो हाई चांसेस है कि ये मेरा बेस्ट क्वार्टर रहा होगा. लेट्स लुक एट इट. क्या ये मेरा बेस्ट क्वार्टर था? रेवेन्यू वाइज यस, एबिटा वाइज यस, margin wise also hot quarter. Then I am having net profit is the best. EPS is also running strongly, so satisfies what I am looking for. Nice growth, and we are at a very base consolidation से बाहर आता हुआ स्टॉक है. स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है. इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं तो ऑल स्टेबल. FIIs have increased their stakes. DIIs नहीं, पब्लिक है ये, तो पब्लिक का रिड्यूस हुआ है. सो ओवरऑल दिस इज ऑल्सो अ गुड कंपनी टू लुक फॉर. तो इस हफ्ते जो स्टॉक्स हमने देखे हैं वो देखा है दौलत और वीनस पाइप्स, और हमने देखा है ज्योति रेजिन्स, राइट? सो इफ यू लाइक ऑल दी स्ट्रेटेजीज एंड आपको भी सीखना है किस तरीके से हम स्टॉक्स को मार्केट में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ पिकअप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली गो थ्रू माय कोर्स मटेरियल्स विच आर अवेलेबल ओवर ईयर. और इसमें से मेनली आपको ध्यान देना है स्ट्रैटेजी मास्टर क्लासेस पे. तो स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास वो प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि मैं पूरा मेरा स्लीप फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करता हूँ. तो स्लीप फ्रेमवर्क क्या है? We select the right stock, we enter it at right time, we exit at right time, we do a good portfolio allocation balanced, and we keep a balanced mindset throughout this journey. तो हर स्ट्रेटेजी में जो मास्टर क्लासेस प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसमें हमारे स्कैनर्स होते हैं फॉर स्टॉक टेक्नो फंडा आइडेंटिफिकेशन, एंट्री पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, एंड क्लियर स्ट्रेटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो ओवरऑल मेरी कोशिश क्या होती है कि जिस तरीके से मैं मार्केट में आकर के अपना एक कंसिस्टेंस रिटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. मार्केट में कंसिस्टेंसी के मामले में रिटर्न कंसिस्टेंस नहीं होता, आपका हिट रेट कंसिस्टेंट होना चाहिए. तो एक कंसिस्टेंट हिट रेट मिलाते हुए जो हम आगे बढ़ते हैं, तो उनकी ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं एज पर योर कंफर्ट. डेफिनेटली यू कैन पिक एंड चूज. और लाइव प्रोग्राम जो इस महीने होने वाला है सितंबर में, दैट विल बी अराउंड द ट्रेंड फॉलोइंग प्रोग्राम एज वेल एज द वीकेंड इन्वेस्टिंग प्रोग्राम. So that is the plan. So catch up with you through the coming month also, and through the coming week also. Overall, we are in the bullish phase. Again, a gentle reminder on the Nifty till 24K bullish phase, 24,400 to 24,600 to 24,000. We will be in a kind of a sideways zone. Overall, US market is looking positive as we saw. ETF good opportunity will be Mon 100 and Mafeng. A quick summary of the week. Tata, bye bye, and we will definitely catch up through the week also if I get something to discuss, as well as we will meet in the next week. Take care. Bye bye.